السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے بادشاہوں اور سرداروں کے نام پتر۔ سن 6 ہجری کے انت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے تشریف لائے تو آپ نے الگ الگ بادشاہوں کے نام پتر لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے ان پتروں کے لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی شکل میں پتر سویکار کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ یہ لکھاوٹ 3 لائنوں میں تھی، محمد 1 لائن میں، رسول 1 لائن میں اور اللہ 1 لائن میں، اوپر نیچے 3 لائنیں تھیں۔ پھر آپ نے جانکاری رکھنے والے انوبھوی صحابہ رضی اللہ عنہ کو قاصد دودت کے روپ میں چنا اور انہیں بادشاہوں کے پاس پتر دے کر روانہ فرمایا۔ اللہ منصور پوری نے پورے وشواس کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ نے یہ دودت اپنے خیبر کوچ کرنے سے کچھ دن پہلے پہلی محرم سن 7 ہجری کو بھیجے تھے۔ آگے کی پنکتیوں میں یہ پتر اور ان کے کچھ پربھاؤں کو لکھا جا رہا ہے۔ 1. نجاشی شاہ حبش کے نام پتر۔ اس نجاشی کا نام اسہمہ بن ابزر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو پتر لکھا اسے عمرو بن امیہ جمری کے ہاتھوں سن 6 ہجری کے آخری یا سن 7 ہجری کے شروع میں روانہ فرمایا۔ طبری نے اس پتر کا الیکھ کیا ہے، لیکن اسے غور سے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ پتر نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سمجھوتے کے بعد لکھا تھا، بلکہ شاید یہ اس پتر کا حصہ ہے جسے آپ نے مکی دور میں حضرت جعفر کو ان کی حبشہ کی ہجرت کے وقت دیا تھا، کیونکہ پتر کے انت میں ان مہاجروں کا الیکھن ان شبدوں میں کیا گیا ہے: میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب وہ تمہارے پاس پہنچے تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر نہ اپنانا۔ بہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور پتر کا لکھا جانا نقل کیا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس روانہ کیا تھا۔ اس کا انواد یہ ہے: یہ پتر ہے محمد نبی کی اور سے نجاشی اسہم شاہ حبشہ کے نام۔ اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے نہ کوئی بیوی اپنائی نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، اس لیے اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے
नसारा का गुनाह है। डॉक्टर हमीदुल्ला साहब पेरिस ने एक और पत्र को नकल किया है जो निकट अतीत में मिला है और सिर्फ एक शब्द के अंतर के साथ यही पत्र अल्लामा इब्ने कय्यम की पुस्तक जादुल माद भी में भी मौजूद है। डॉक्टर साहब ने उस पत्र की जांच पड़ताल में बड़ी मेहनत की है। आज की जांच पद्धति का फ़ायदा उठाया है और उस पत्र का फ़ोटो भी पुस्तक में छपा दिया है। उस पत्र का अनुवाद इस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ओर से महान नजाशी हबशा के नाम, उस व्यक्ति पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं तुम्हारे और अल्लाह का गुणगान करता हूँ जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो कुद्दूस अति पवित्र और सलाम सुख शांति वाला है, अमन देने वाला, रक्षक और निगराह है। और मैं गवाही देता हूँ कि ईसा बिन मरियम अल्लाह की रूह है और उसका कलिमा है। अल्लाह ने उन्हें पाकीज़ा और पाक दामन मरियम बतूल की तरफ डाल दिया और उसकी रूह और फूंक से मरियम ईसा के लिए गर्भवती हुई। जैसे अल्लाह ने आदम को अपने हाथों से पैदा किया, मैं एक अल्लाह की ओर और उसकी इताअत पर एक दूसरे की मदद की ओर दावत देता हूँ और इस बात की ओर बुलाता हूँ कि तुम मेरी पैरवी करो और जो कुछ मेरे पास आया है उस पर ईमान लाओ, क्योंकि अल्लाह का रसूल हूँ और मैं तुम्हें और तुम्हारी फ़ौज को अल्लाह की ओर बुलाता हूँ। और मैंने तबलीग और नसीहत कर दी, इसलिए मेरी नसीहत कबूल करो और उस व्यक्ति पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। डॉक्टर हमीदुल्ला साहब ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि यही वह पत्र है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के बाद नजाशी के पास रवाना फरमाया था। जहाँ तक इस पत्र की प्रामाणिकता का प्रश्न है तो दलीलों पर नज़र डालने के बाद उसके सही होने में कोई संदेह नहीं रहता, लेकिन इस बात की कोई दलील नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के बाद यही पत्र भेजा था, बल्कि बैहकी ने जो पत्र इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से नकल किया है उसकी शैली उन पत्रों से ज़्यादा मिलती जुलती है जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के बाद ईसाई बादशाहों और सरदारों के पास रवाना फरमाया था, क्योंकि जिस तरह आपने इन पत्रों से आयत या अहलल किताबी तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम नकल किया था, उसी तरह बैहकी के नकल किए हुए इस पत्र में यह आयत लिखी हुई है। इसके अलावा इस पत्र में स्पष्ट रूप से असहमा का नाम भी मौजूद है, जबकि डॉक्टर हमीदुल्ला साहब के नकल किए हुए पत्र में किसी का नाम नहीं है। इसलिए मेरा विचार है कि डॉक्टर साहब का नकल किया हुआ वास्तव में वह पत्र है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहमा के देहांत के बाद उसके उत्तराधिकारी के नाम लिखा था, और शायद यही वजह है कि इसमें कोई नाम नहीं लिखा है। इस क्रम की मेरे पास कोई दलील नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद केवल वे अंदरूनी गवाहियाँ हैं जो इन पत्रों में मिल जाती है। अलबत्ता डॉक्टर हमीदुल्ला साहब पर ताज्जुब है कि उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से
बैहकी के नकल किए हुए पूरे पत्र को पूरे विश्वास के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह पत्र कहा है जो अपने असहमा की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के नाम लिखा था। हालांकि इस पत्र में स्पष्ट रूप से असहमा का नाम मौजूद है, ज्ञान तो अल्लाह का है। बहरहाल जब अम्र बिन उमैया जुमरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पत्र नजाशी के हवाले किया तो नजाशी ने उसे लेकर आंख पर रखा और तख्त से धरती पर उतर आया और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस बारे में पत्र लिखा जो यह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में नजाशी असहमा की ओर से। ए अल्लाह नबी, आप पर अल्लाह की ओर से सलाम और उसकी रहमत और बरकतें हो। वह अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसके बाद ए अल्लाह के रसूल, मुझे आपका मान्य पत्र मिला जिसमें आपने ईसा के मामले का जिक्र किया है। आसमान व ज़मीन के अल्लाह की कसम, आपने जो कुछ लिखा है हज़रत ईसा उससे एक दिन का ज़्यादा ना थे। वह वैसे हैं जैसे आपने जिक्र फरमाया है। फिर जो कुछ हमारे पास भेजा है हमने उसे जाना और आपके चचेरे भाई और आपके सहाबा की मेहमानदारी की और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे और पक्के रसूल हैं और मैंने आपसे बैत की और आपके चचेरे भाई से बैत की और उनके हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी से यह भी कहा था कि वह हज़रत जाफ़र और हफ्शा के दूसरे मुहाजिरों को रवाना कर दे। चुनाचे उसने हज़रत अम्र बिन उमैया जुमरी के साथ 2 नावों में उनकी रवानगी का इंतज़ाम कर दिया। एक नाव में सवार जिसमें हज़रत जाफ़र और हज़रत अबू मूसा अशअरी और कुछ दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, सीधे खैबर पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दूसरी नाव में सवार जिसमें ज़्यादातर बाल बच्चे थे सीधे मदीना पहुँचे। उसी नजाशी ने तबूक की लड़ाई के बाद रजब सन 9 हिजरी में वफ़ात पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वफ़ात ही के दिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को उसके मरने की सूचना दी और उस पर गैबाना नमाज जनाजा पढ़ी। उसकी वफ़ात के बाद दूसरा बादशाह उसका उत्तराधी होकर राज सिंहासन पर बैठा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास भी एक खत भेजा, लेकिन यह नामालूम हो सका कि उसने इस्लाम कबूल किया या नहीं। मुकैकित शाह मिस्र के नाम पत्र, इसके बारे में हम कल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।